ایڈمنسٹریٹر اور اسسٹنٹ کمشنر منچن آباد کا شہر کا وزٹ رپورٹ کر رہے ہیں مقصود شریف چویا۔ جی مقصود، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں؟ جی، اسسٹنٹ کمشنر و ایڈمنسٹریٹر منچن آباد احمد جوید چیمہ نے تجاوزات کے خاتمہ اور شہر کے سیکورٹی معاملات کو چیک کرنے کے لیے صبح سویرے شہر کا اچانک دورہ کیا ہے۔ شہر میں مدنی چوک سے لاری اڈہ اور مدنی چوک سے ابوبکر چوک تک وزٹ کے دوران شہر میں موجود تجاوزات کے خاتمہ کے لیے کارروائیاں کرتے ہوئے تجاوزات مافیا کو وارننگ اور متعدد کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے نام کا اندراج کیا ہے۔ دوران وزٹ اسسٹنٹ کمشنر منچن آباد نے عوامی مسائل میڈیا گروپ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ شہر میں تجاوزات مافیا سے آنی ہاتھوں سے نمٹنے کے لیے مکمل حکمت عملی تیار کر لی ہے، جس سے تجاوزات کا خاتمہ یقینی ہوگا۔ ان کے ہمراہ اکمل بٹی اور عملہ ایڈمنسٹریٹر بھی موجود ہے۔ جی مقصود شریف چویا، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کا۔ مزید آپ کو اپڈیٹ کریں گے نوڈیرو سے، جہاں پر بھٹو خاندان سے تعلق رکھنے والے عادل منصور بھٹو کا میڈیا کے سامنے احتجاج۔ ہم سرور شیخ کی رپورٹ کے مطابق گڑی خدا بخش بھٹو کے رہواسی بھٹو خاندان سے تعلق رکھنے والی شخص شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور ممتاز علی بھٹو کے کزن اختیار علی بھٹو کے بیٹے عادل منصور بھٹو کا میڈیا کے سامنے احتجاج۔ کہا کہ گوشت باغ خان گوپانگ میں زرعی زمین ہے، 4 ماہ پہلے ہماری زمین سے کچھ شرپسند عناصر نے ہماری رائس کے فصل کو کاٹ کر نقصان کر دیا، جس کی NC ہم نے نوڈیرو تھانے میں کروائی، احتجاج بھی کیا، جس کے باوجود پولیس جوابدار گرفتار نہیں کر رہی۔ مزید کہا کہ IG سندھ DIG لاڑکانہ سے اپیل ہے کہ نوڈیرو پولیس کو پابند بنا کر بااثر لوگوں کو گرفتار کر کے میرے ساتھ انصاف کیا جائے، انصاف نہ ملنے کی صورت میں احتجاج کیا جائے گا۔ آفیسر AGIG نصیر آباد کی زیر صدارت کمپلینٹ سیل کا اہم اجلاس منعقد ہوا۔ جعفر خان کنوانی کی رپورٹ کے مطابق ریجنل کمپلینٹ سیل آفیسر AGIG پولیس نصیر آباد امیر جان مکسی کی زیر صدارت کمپلینٹ سیل کا اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ڈسٹرکٹ کمپلینٹ سیل آفیسر نصیر آباد ملک عبدالغفار سیلاچی، ڈسٹرکٹ کمپلینٹ سیل آفیسر جعفر آباد منظور احمد جمالی اور ڈسٹرکٹ کمپلینٹ سیل آفیسر صحبت پور علی حسن عمرانی نے شرکت کی۔ اس موقع پر ریجنل کمپلینٹ سیل آفیسر امیر جان مکسی کا کہنا تھا کہ IG پولیس بلوچستان اور DIG پولیس نصیر آباد نے خصوصی ہدایات جاری کی ہے کہ پاکستان سٹیزن پورٹل کے حوالے سے عوام کی جو بھی جائز شکایات ہیں انہیں فوری حل کیا جائے۔ ہم مزید دادو سے اپڈیٹ شامل کریں گے۔ دادو میں گیس کی فراہمی معطل ہو گئی، علاقہ مکین سخت پریشان۔ رپورٹ کر رہے ہیں قربان علی کھوسا۔ جی قربان، آگاہ کیجیے گا۔ جی، جیسا کہ آپ کو بتاتا چلوں کہ دادو کے علاقے ریلوے کالونی میں گزشتہ 9 دن سے سوئی گیس کی فراہمی معطل ہے، جبکہ علاقے واسی سخت پریشانی میں مبتلا ہے۔ علاقے واسی ایڈوکیٹ فاروق احمد سولنگی نے میڈیا کو بتایا کہ گزشتہ 9 دن سے گیس کی سپلائی بالکل بند ہے اور ہم شہر میں رہ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم لکڑیوں پہ گزارا کر رہے ہیں۔ کافی مرتبہ سوئی گیس انتظامیہ کو شکایت کی ہے، لکھت میں بھی دیا ہے، لیکن کوئی ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں، جبکہ اسٹاف کا کہنا ہے کہ جب تک ہمارا آفیسر ہمیں حکم نہیں کرے گا زونل مینیجر، تب تک ہم کوئی کارروائی عمل میں نہیں لے آئیں گے۔ اس لیے علاقے واسیوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے لکھت میں کافی کمپلینیں بھی کی ہیں، اس کے باوجود ہم نے آفس کے کافی مرتبہ چکر بھی لگائے ہیں، لیکن انتظامیہ کوئی کارروائی لینے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ ہم نے یہ سوشل میڈیا پہ بھی کافی پوسٹیں رکھی ہیں، وائرل کی ہیں کہ بھائی ہمارا تدارک کیا جائے، لیکن اس کے باوجود بھی سوئی گیس انتظامیہ کوئی کارروائی عمل میں نہیں لا رہی۔ جبکہ اس نے بتایا کہ آخر ہم نے تنگ آ کر قانون کا سہارا لے کے لیگل نوٹس تک انتظامیہ کے زونل مینیجر دادو والے کو دیا ہے، اس کے باوجود بھی انتظامیہ کوئی بھی تدارک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ ہی ہمارے علاقے میں آئی ہے، نہ وزٹ کیا ہے، نہیں دیکھا، نہیں ان لوگوں کو ہماری کوئی پرواہ ہے۔ اس لوگوں نے علاقے واسیوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم اعلیٰ اختیاروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے کالونی کی گیس کو بحال کیا جائے اور دادو سوئی گیس آفس انتظامیہ اور زونل مینیجر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ اگر کارروائی نہیں کی گئی تو ہم دادو سوئی گیس آفس کے سامنے دھرنا لگا کے بیٹھ جائیں گے۔ جی قربان، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کا۔ مزید آپ کو دادو سے اپڈیٹ شامل کریں گے۔ اپڈیٹ کرتے چلے دادو سے۔ دادو میں DIG پولیس کی میڈیا سے گفتگو۔
सैयद पीर मोहम्मद शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, TIG हैदराबाद ने डॉक्टर असमत केस मुकामी पुलिस की सुस्त रवि का एतराफ़ कर लिया। मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस की सुस्त रवि है। TIG हैदराबाद वाक़े की इंक्वायरी भी हुई थी जिसमें जाली निकाह क्लियर हुआ था। TIG हैदराबाद गफलत बरतने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैप्टन रिटायर्ड फरीदुद्दीन मुस्तफ़ा का सहवन का विजिट, जिसमें मुख्तलिफ RO प्लांट्स के विजिट किए और पानी की फराहमी की सूरत हाल का जायजा लिया। इसके बाद कोरोना वैक्सीन की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अस्पताल पहुंचकर अस्पताल के मेन गेट पर हर आने जाने वाले लोगों से कोरोना वैक्सीन कार्ड चेक किए और कोरोना वैक्सीन के मुतालिक महकमा सेहत के जिला के मुतालिका अफसरान से इजलास भी मुनाकिद किया। मारूफ तज्जिया कार सफीना खान की ब्यूरो पंजाब NN24 न्यूज़ HD से खुसूसी गुफ्तगू। मजीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम 2-3 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। पहला टॉपिक है जो पाकिस्तान की बार एसोसिएशन के जो सदर हैं एहसन वुमन साहब, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर कर दी है जिसमें कहा गया है कि नवाज शरीफ साहब की ताहयात जो नाअहली है उससे रिलेटेड कुछ जो आर्टिकल्स हैं उसको मजीद उसकी तशरीह की जाए। जैसे कहा जाए कि आर्टिकल 184 है और आर्टिकल 99 है, वो मजीद तशरीह चाहता है और उन्होंने इसके अंदर वफाक को भी फरीक बनाया है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहिबा काफी अरसे से ये कोशिश करते चले आ रहे हैं कि वो किसी न किसी तरह से पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर ये तासुर देने के में कामयाब हो जाएं कि जो उनके साथ जो उनकी नाअहली की गई थी वो बायस डिसीजन थे, वो फेयर डिसीजन नहीं था। जैसे लास्ट टाइम उन्होंने पहले जस्टिस जो हमारे एक साबिक जज थे अरशद मलिक मरहूम, उनकी वीडियो लीक करके ये तासुर देने की कोशिश की कि ये देखें ये दबाव में थे जब हमारे खिलाफ फैसले दिए गए, जबकि मरहूम अरशद मलिक ने अपनी जिंदगी में ही उस वीडियो के बारे में ये कह दिया था बयान हल्फी के तौर पे कि ये डिस्टॉर्टेड है और ये मेरी मुख्तलिफ बातों को जोड़कर गलत तासुर देने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद रिसेंटली लास्ट ईयर में जो अहमद नूरानी साहब के थ्रू एक ऑडियो लीक करवाई गई थी जिसमें ये तासुर देने की कोशिश की गई कि साकिब निसार साहब भी खुद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले देने में इन्वॉल्व रहे हैं, बल्कि वो इस चीज के लिए गिल्टी भी फील कर रहे हैं कि देखिए मैंने गलत फैसले किए और हमसे याद करवाए गए। जो जिसके साथ साथ पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के जो चीफ जस्टिस थे राना शमीम, उनका सेम बयान हल्फी भी रिकॉर्ड करवाया गया उस ऑडियो लीक को मजीद स्ट्रॉन्ग तासुर देने के लिए कि दे ऑल टुगेदर कनेक्टिंग टू ईच अदर, कि ये सच है। जो कि बाद में अब उसका भी हेयरिंग है जिसके ऊपर जंग ग्रुप के पूरे तकरीबन ऑलमोस्ट एवरी अदर पर्सन जो इन्वॉल्व हैं, इंतजार अब्बासी साहब इन्वॉल्व हैं, शकीर रहमान इन्वॉल्व हैं और इनके एक और अखबार के एडिटर हैं, वो भी जिसको पोस्टपोन कर दिया है पाकिस्तान की अदलिया ने, शायद 17 को अब उसकी हेयरिंग होगी। चलिए अब उस हेयरिंग का जिक्र कर ही लिया है मैंने, तो मैं ये बताती चलूँ कि मुझे नहीं लगता कि उस हेयरिंग के ऊपर किसी को सजा होगी। मुझे ऐसे लगता है, ये मेरा तज़किया है, मेरा एनालिसिस है कि एक जॉइंट किस्म का माफीनामा क्रिएट करके उनको दिया जाएगा और जिसके ऊपर शायद बहुत ही कोई माइल्ड सी अगर या बहुत ही जिसको कह ले बेज़रर सी उनको कुछ अपडेट शामिल करेंगे। नारवाल में मरी जाने वाले सियाह फैमिली की वापसी, होलनाक इंकशाफात सामने आ गए। रिपोर्ट देखते हैं उस्मान अली की। जी उस्मान। वहाँ पे हमने मीडिया को पैगाम दिया कि वो हमारी आवाज़ बने और फिर वो हमारी आवाज़ बने और वज़ीर दाखिला तक हमारा पैगाम पहुँचाया और मैं शुक्रगुज़ार हूँ वज़ीर दाखिला का भी और उससे ज़्यादा अपनी पाक आर्मी का, जिन्होंने अपनी जानों को ख़तरे में डालकर हमें अपने घर पहुँचाया। सब लोग वेकेशन के लिए अपनी फैमिली के साथ वेकेशन में अपनी फैमिली के साथ टूर पे जाते हैं, वैसे ही हम भी अपनी फैमिली के साथ टूर पे गए। हमने बहुत इंजॉय भी किया, लेकिन जब हमने वापस आना था तो हम कश्मीर पॉइंट पे थे कि हमारे देखते ही देखते आधे घंटे में स्नोफॉल और तूफ़ानी हवाओं ने सैकड़ों गाड़ियों को अपनी लपेट में ले लिया और चीखते चिल्लाते हुए बच्चों को जब मैंने देखा तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। जैसे दिल करता बोलो। अस्सलाम वालेकुम। मैंने वहाँ 2 तरह के लोग देखे, एक वो कि जिनके घर पास थे, उन्होंने उनकी हर तरह से मदद की, जो पानी दिया, खाने के लिए सामान दिया, और एक वो जो बिजनेसमैन थे, उन्होंने मजबूर लोगों का नाजायज़ फ़ायदा उठाया
डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह की ज़ेर सदारत किसानों को यूरिया खाद की फराहमी के हवाले से एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। रिपोर्ट कर रहे हैं नवीद गुजर। जी नवीद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि खाद डीलरों ने पिछले 2-3 दिन से हड़ताल की हुई थी, तो इस मौका से टोबा टेक सिंह अजलास में खाद सेंटर पर खाद की तरसेल, तलब और रसीद और खाद डीलरों के मसाइल के बारे में मशावरत की गई। टोबा टेक सिंह डिप्टी कमिश्नर ने खाद डीलरों के मसाइल सुने और खाद की तरसेल के बारे में जायजा लिया। टोबा टेक सिंह ज़िली इंतजामिया गंदम की काश्तकारों को खाद की फराहमी के हवाले से मौसर इक़दामात उठा रही है। DC उमर जवेद किसानों की ज़रूरियात की पेश नज़र 100% खाद की फराहमी यकीनी बनाने में कोई कसर न रखेगी। DC उमर जवेद टोबा टेक सिंह ज़िली इंतजामिया किसानों के मसाइल से आगाह किया। किसानों के मसाइल का हल करने के लिए टोबा टेक सिंह इंतजामिया खाद का बूता बहरान ख़त्म करने के लिए अमली इक़दामात कर रही है। DC उमर जवेद टोबा टेक सिंह इंतजामिया खाद डीलरों के साथ मामलात तय पा गए। कैमरामैन राना बशारत, NN24 न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ नवीद गुजर, टोबा टेक सिंह। जी नवीद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। पिंडादन खान से अपडेट शामिल करेंगे। पिंडादन खान में महकमा ज़राअत वसी की जानिब से किसानों और काश्तकारों में इनामात तकसीम करने के हवाले से एक कुरानदाजी का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मुंतसिर मेहदी। जी मुंतसिर मेहदी, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा ज़राअत तोसी पिंडादन खान के ज़ेर एहतमाम जलालपुर कमांड एरिया के लिए कुरानदाजी की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें फरवरी में लगाई जाने वाली सब्जियों, फ्रूट और फसलों पर हुकूमत की तरफ से 35, 52 और 85 हज़ार रुपये के इनामात का ऐलान किया गया, जिसके लिए 191 दरख्वास्तें मौसूल हों, जिनकी जांच पड़ताल के बाद शराइत और ज़वाबित मुकम्मल करने वाली दरख्वास्तों को कुरानदाजी में शामिल किया गया। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत शाहिद बुखारी का कहना है कि किसानों को सब्सिडी और इनामात देने का मकसद ये है कि किसान बेहतर तौर पर अपनी ज़मीनों पर काश्तकारी करें और इलाकाई और मुल्की ज़रूरियात पूरी करने के साथ साथ ज़र मुबादला बनाने में अहम किरदार अदा करें। इस मौके पर असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर ज़ाहिद ने कहा कि किसानों को हर किस्म का रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। जलालपुर नहर की तामीर इलाके के लिए बहुत खुश आइन साबित होगी, जिससे इलाके का 70 से 80% हिस्सा सैराब हो सकेगा, जो कि आने वाले दौर में खुशहाली का बायस बनेगा। इस मौके पर तहसील पिंडादन खान के किसानों और मुख्तलिफ शोबों से तल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। जी इंडोनेशिया के आलमदीन से मकसूद अंसारी की मुलाकात। शान मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया के आलमदीन मौलाना मोहम्मद हमजा और अब्बाबाद से सैयद मोहम्मद नदीम, पीरजादा शेख उल अंसार अबू अल हसन पीर मकसूद अंसारी से मुलाकात। इस मौका पर साहबजादा शहजादा सरमद अली अंसारी और साहबजादा शहजादा अली मकसूद अंसारी भी मौजूद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अमन के साथ।